اچھا جی، لاسٹ والے لیکچرز میں ہم نے جو ہے نا ڈسکس کیا تھا ٹائپس آف کمپنی کے اوپر نا کہ کمپنی کے ٹائپس کتنے ہوتے ہیں. بٹ اس لیکچر میں جو ہے نا ہمارے پاس کچھ چیزیں رہ گئی تھی، جیسے کہ لاسٹ والی ٹاپک ہمارے پاس تھی پبلک انٹرسٹ کمپنی کی. یعنی کہ ادر کمپنی کے کیس میں پبلک انٹرسٹ کمپنی کے ایک وہ تھا کیس. پبلک انٹرسٹ کمپنی کس کو بولتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں ریوائنڈ کرتا ہوں نا. پبلک انٹرسٹ کمپنی کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو پبلک انٹرسٹ کمپنی جو ہے نا ہمارے پاس ایک براڈر ٹرم ہے نا. اس میں ہمارے پاس جو اوپر جتنے بھی ہم نے تقریباً پڑھی لسٹڈ کمپنی، ٹھیک ہے، یہ جو ادر کمپنیز میں ہمارا لسٹڈ کمپنی ہو گئی، ان لسٹڈ کمپنی ہو گئی، اس کے علاوہ جو پرائیویٹ پبلک ہو گئی. یعنی کہ پبلک لسٹڈ کمپنی میں ہمارے پاس پبلک کمپنی تو انکلوڈڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا پبلک کمپنی، ابھی دیکھو پبلک کمپنی ہمارے پاس یا تو لسٹڈ ہو سکتی ہے یا تو ان لسٹڈ ہو سکتی ہے. اگر تو پبلک کمپنی کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج پہ ہے تو وہ لسٹڈ کمپنی ہو جائے گی، پبلک لسٹڈ کمپنی ہو جائے گی. اگر اسٹاک ایکسچینج سیکورٹی ایکسچینج پہ نہیں ہے تو ان لسٹڈ ہو جائے گی. پبلک سیکٹر کمپنی تو ہے ہی الگ. یہ ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کے ادارے جس میں ہمارے پاس 50% سے زیادہ جو ہے نا اونرشپ گورنمنٹ کی ہو تو اس کو ہم پبلک سیکٹر کمپنی بولتے ہیں. چاہے یہ گورنمنٹ فیڈرل ہو، پروفیشنل ہو، یا کوئی اور گورنمنٹ ہو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ. کوئی اور گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس فارن گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو فارن گورنمنٹ نے بھی اگر 50 سے زیادہ اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم پبلک سیکٹر کمپنی بولیں گے. اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا آگے ہم ایک پورا ایک ریگولیشنز ہیں پبلک سیکٹر کمپنی کو، ایک وہ نیو ایکٹ آیا ہے پبلک سیکٹر کمپنی کے اوپر. تو وہ بھی ہم آج جب آئے گا ٹائم تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے. اب پبلک انٹرسٹ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ پبلک انٹرسٹ کمپنی جو ہے نا تھرڈ شیڈول میں اس کی بڑی ڈیفینیشن دی گئی ہے. اس ڈیفینیشن میں لسٹڈ کمپنی بھی شامل ہے، پبلک سیکٹر کمپنی بھی شامل ہے، بینکس بھی شامل ہے، انشورنس والے بھی شامل ہے، کمپنیز ہولڈنگ ایسٹ یعنی کہ میوچل فنڈ ہو گئے، پینشن فنڈ ہو گئے، سیکورٹی بروکر ہو گئے، انویسٹمنٹ بینک ہو، ان سب کو مداربہ کمپنی ہو گئی. یہ سارے کے سارے پبلک انٹرسٹ کمپنی میں کلاسیفائی کیے جاتے ہیں. پبلک انٹرسٹ کمپنی کو اگر صحیح سے سمجھا جائے تو یہ ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ کمپنی جو ہے نا وہ کمپنی ہے جو جس کا بزنس جو بزنس کرتی ہے نا اس کا بزنس جو ہے نا افیکٹ کرے لارج نمبر آف پیپلس کو. ٹھیک ہے، یا اس میں پبلک کی کوئی منی انوالو ہو تو اس کو ہم پبلک سیکٹر کمپنی بولیں گے. تو ان سب کا جو اوپر 5-6 ایگزامپل دی ہوئی ہیں، ان سب میں تقریباً یہ 6 ایگزامپل میں تقریباً پبلک کا ہمارے پاس کیا ہوا ہے، پیسہ یوز ہوتا ہو ہے، یعنی لارجر ٹرم میں. تو اس لیے اس کو پبلک سیکٹر کمپنی بولا جاتا ہے. اب چلتے ہیں ہمارے پاس اپنے ٹاپک پہ. جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے رجسٹریشن آف کمپنی. ایک کمپنی کو رجسٹر کیسے کیا جائے، یہ سارا ٹاپک ہمارے پاس اس کے اوپر ہے کہ ایک کمپنی کو رجسٹر کیسے کیا جائے. اب رجسٹریشن کے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک بڑا ایک یعنی کہ بہت سارے سیکشن اس کے ریلیٹڈ ہیں. یعنی اب یہاں پر جو ہے نا اس ٹاپک میں تقریباً 10 یا 12 یا مے بی 20 جو ہے نا میں سیکشن کور کرنے کی کوشش کروں، اور اس کے ریلیٹڈ کوئی ایس آر ہو اور ہمارے پاس کیا ہو کوئی ریگولیشن ہو تو وہ بھی میں کور کروں گا. اس کے ریلیٹڈ کہ کمپنی کو رجسٹر کیسے کیا جائے گا. تو کمپنی کو رجسٹر کرنے کے لیے نا ہمارے پاس پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کمپنی کس کو بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، کس کو بنانی چاہیے، لا نے کس کو ریکوائر کیا ہے. نارملی 1% ہمارے پاس کتنے پرسن ہوں جو کمپنی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی پہ، وہ تو اپنی مرضی پہ بنا رہے ہیں. بٹ لا جو ہے نا ہمارے پاس ریسٹرکٹ کرتا ہے ایک دن یعنی کچھ پرسنس کو، جو اس سیکشن نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان پرسنس کو ان یا کمپنی رجسٹر کرنا لازمی ہے. نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر پینلٹی لگے گی اگر کمپنی رجسٹر نہیں کرتے تو ان پرسنس کے اوپر. اب یہ کون سے پرسنس ہیں؟ تو اس لیے یہ بول رہا ہے، لا بول رہا ہے کہ کوئی بھی ایسوسیشن آف پرسن، ہم آگے جا کے سیکشن 42 میں ہم کیا کریں گے پڑھیں گے. پارٹنرشپ، اور جو ہمارے پاس کیا ہے کوئی بھی اینٹی ہو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس ہو جس میں پرسن ہمارے پاس 20 سے زیادہ ہو، یعنی کہ اس میں جو ممبرس ہو وہ 20 سے زیادہ ہو، اور ان کا کام جو ان کا بزنس ہے نا، مطلب کہ وہ جو کام جس پرپس کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں وہ پرپس اس کا یہ ہے کہ وہ بزنس سے بزنس کریں، یعنی کہ پروفٹ ارن کر رہے ہیں اس سے. یعنی کہ اس کے لیے ہمارے پاس نے ورڈ یوز کیا ہوا ہے کہ پروفٹ ڈیٹ ہیز فار اٹس آبجیکٹ از ٹو گین پروفٹ acquisition of gains. ٹھیک ہے، unless it is registered as a company under this act. اس کا مطلب ابھی اس کو تھوڑا سمپل کمپلیٹ سینٹینس کو پڑھتے ہیں پھر اس میں اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں. No association, partnership or entity consisting of
more than 20% shall be formed for the purpose of carrying out business that has for its object to gain acquisition of gain unless registered under company or other any other act uh, register as a company under this act. इसका मतलब मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास क्या है कि कोई भी पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो पार्टनरशिप हो या कोई और एंटिटी हो या उसमें अगर तो मेंबर्स 20 से ज़्यादा हो रहे हैं और उनका पर्पस जो है ना बिजनेस कमाना है बिजनेस करना है बिजनेस करने का मतलब है एक्विजिशन ऑफ गेन यानी कि प्रॉफिट कमाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको रिक्वायर्ड है कि कंपनी क्या करे उसको कंपनी में रजिस्टर कंपनी लॉ उसको रिक्वायर करता है कि उसको एज अ कंपनी रजिस्टर कराना लाजमी है इसको सिंपल एग्जाम्पलेशन यहाँ पर ये भी मैंने लिखी हुई है कि इफ योर ग्रुप हैज मोर देन 20 people and your purpose to earn profit you must register as a company you cannot operate as an informal association or partnership behind that threshold तो वही नहीं होगा आपको जो है ना हमारे अगर 20 से ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं और प्रॉफिट आपको अर्न पर्पस है तो हमारा रजिस्टर कराना लाजमी बन जाएगा इसको सिंपल एग्जांपल है यानी कि कंपनी रजिस्टर कराने के लिए दो कंडीशन है वो दो कंडीशन कौन सी है 20 से ज़्यादा लोग होने चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव गेन होना चाहिए तो लॉ रिक्वायर करता है कि उनको एनी हाउ कंपनी रजिस्टर कराना लाजमी है अब ये तो रिक्वायरमेंट है अब इसके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड हमारे पास कुछ लोगों ने अगर कुछ लोगों ने लॉ यानी कि लॉ ने सोचा कि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको कंपनी चाहे वो 20 से ज़्यादा हो और कंपनी रजिस्टर करना लाजमी नहीं है उनके लिए तो इसी सेक्शन में उसने एक एक्सेप्शन दे दी ठीक है इसमें अगर 40-20 से ज़्यादा भी लोग हो जाते हैं ना तो भी उनको क्या है हमारे पास कंपनी रजिस्टर करना लाजमी नहीं है अब ये कौन से लोग हैं अगर कितने एक्सेप्शन हैं ये चार तरह के लोग हैं चार तरह के बॉडीज हैं ये एक्सेप्शन 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4 तो चार तरह की एग्जांपल्स हमारे पास एक्सेप्शन है जो इनको कंपनी रजिस्टर करना लाजमी नहीं है कंपनी एक्ट ये बोलता है इनको अच्छा चार तरह की एग्जांपल में सबसे पहली जो हमारी एग्जांपल है यहाँ सबसे पहले जो है ना एक्सेप्शन है वो ये है कि सोसाइटी बॉडी या एसोसिएशन जो ऑलरेडी रजिस्टर हो किसी और लॉ के तहत मतलब कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हुआ हो बट किसी और लॉ के तहत वो रजिस्टर हुई हो पाकिस्तान में तो उसको ये हमारे पास क्या है कि 20 से ज़्यादा अगर वो बंदे उसको हो भी जाते हैं तो उस पर हमारे पास क्या है उसको कंपनी रजिस्टर करना लाजमी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और लॉ के तहत रजिस्टर हुई है अब किसी और लॉ के तहत रजिस्टर होने का क्या मतलब है देखो सोसाइटीज़ होती हैं और हमारे पास बहुत सारा अदर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अब उसकी एग्जांपल्स ये भी हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई हाउसिंग सोसाइटी हो गई या हमारे पास क्या हो जाएगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया ठीक है ये चीज़ें जो है ना हमारे पास अलग अलग एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग से हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होती है तो इस सेक्शन में यही बता रहे हैं कि एनी सोसाइटी बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप के अलावा डेट इज ऑलरेडी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ इन फोर्स पाकिस्तान डज नॉट नीड टू रजिस्टर एज अ कंपनी एक्ट एज अ अंडर कंपनी एक्ट के तहत उसको रजिस्टर एज अ कंपनी हमारे पास रजिस्टर करना लाजमी नहीं है उनकी एग्जांपल ये दो मैंने लिखी हुई है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जो है ना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है इसमें अभी 3,000 मेंबर 300 मेंबर्स ऑलरेडी हैं फिर भी एक हमारे पास कंपनी लॉ में कंपनी रजिस्टर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किसी और लॉ के तहत रजिस्टर हुआ है तो ये पहले एक्सेप्शन में फॉल करता है इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए तो वो भी किसी उनका अलग सा लॉ है तो उसके तहत वो रजिस्टर हुआ है ये इसके लिए भी हमारे पास कंपनी एज अ कंपनी लॉ में रजिस्टर करना लाजमी नहीं है अच्छा दूसरी एग्जम्पशन है हमारे पास जॉइंट फैमिलीज के ऊपर अब जॉइंट फैमिली जो है ना अगर फैमिली बिजनेस कर रहे और जो है ना उनके फिर जितने भी बंदे हो वो हमारे पास क्या हो कि अब ये जॉइंट फैमिली है पार्टनरशिप नहीं है अब पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हुआ होगा ये वाला एक्सेप्शन इस एक्सेप्शन में पार्टनरशिप नहीं है ये जॉइंट बिजनेस है यानी कि इंडिविजुअल पर्सन से वो जॉइंटली हमारे पास क्या कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास क्या है रजिस्टर करना लाजमी नहीं है उनके लिए ठीक है चाहे 20 से ज़्यादा क्यों नहीं हो अब दूसरा हमारे पास तीसरी एग्जम्पशन है जॉइंट बिजनेस तो है बट यहाँ पर वो पार्टनरशिप है ठीक है अब इस पार्टनरशिप है तो इसमें भी हमारे पास इनके पास भी एग्जम्पशन है कि अगर तो पार्टनरशिप है जॉइंट बिजनेस में तो वो जो है ना हमारे पास एग्जम्पशन वो ले सकते हैं हमारे पास क्या हो अगर तो उनके मेंबर्स ना 20 से कम हो अब ये तो वही बात हो गई ना जैसे कि वहां पर 20 से कम अगर हो तो उनको भी यानी में अगर डज नॉट एक्सीड अगर 20 से कम नहीं होते बट अगर तो उनके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अक्रॉस ऑल फैमिलीज 20 से ज़्यादा नहीं होते
तो हमारे पास उनको रजिस्टर करना लाजमी नहीं है एज अ कंपनी। अगर 20 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर रजिस्टर करना लाजमी हो जाएगा इनके लिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि ये एक्सक्लूड करते हैं माइनर्स को। ठीक है, माइनर छोटे मेंबर्स हो तो उनको एक्सक्लूड करते हैं। तो इसलिए ये जॉइंट फैमिली बिजनेस जो है ना बच जाते हैं हमारे पास एज अ कंपनी रजिस्टर करने से। क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे पास जो है ना CNSE के बेसिस पे वो अपना वेरिफिकेशन कराते हैं कि हमारे पास इतने जो मेंबर्स हैं ना वो हमारे पास क्या है, माइनर्स हैं। तो उनके लिए एक्सेप्शन ये बन जाती है, फिर वो रजिस्टर करना लाजमी नहीं बनता उनके लिए हमारे पास कंपनी। फिर तीसरी एग्जम्पशन है हमारे पास प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स। अब ये हमारे पास अकाउंटेंट के रिलेटेड ही है। जैसे कि हमारे कंपनी सॉरी चार्टेड अकाउंटेंट की ऑडिट फर्म्स हो गई, टैक्सेशन फर्म हो गई, उसके अलावा हमारे पास लॉयर्स की फर्म हो गई, या एनी अदर डॉक्टर्स की फर्म हो गई। ये जो है ना इनको जो है ना एक्सेप्शन दी गई है कि इनको भी कंपनी रजिस्टर करना लाजमी नहीं है। तो इसलिए ये बोल रहा है अ पार्टनरशिप फॉर्म टू प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशनल such as law, accountancy, or any other profession is exempt, but only where the relevant professional law or regulation does not permit that profession to be practiced through a limited liability company। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए, but only where the relevant professional laws and regulation do not permit that the professional to be practiced through a limited liability company। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास अभी जैसे कि CFM जो है ना हमारे पास वो एज अ कंपनी रजिस्टर नहीं करा सकते अपने आप को। उसका रीज़न ये है कि जो IKF का बायला है ना वो एक किस्म का एक बायला, एक IKF का एक्ट है। उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि CA जो है ना हमारे कंपनी बना नहीं सकता कभी। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है कि लॉयर्स हो या अकाउंटेंट या कोई और प्रोफेशन जिसके बाय लॉ में अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कि वो हमारे पास प्रैक्टिस नहीं कर सकता एज ए लिमिटेड लाइफ कंपनी, तो उसको रजिस्टर कराना लाजमी नहीं है। क्योंकि ये लॉ भी लोग पाकिस्तान के लॉ ही है तो इस हिसाब से इनको भी रजिस्टर कराना लाजमी नहीं है। वैसे रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो है ना ACCP या एक बिजनेस है उसके ऊपर जो है ना देखा जाए तो उसमें क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी होती है। बट अगर तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास पहली एग्जम्पशन थी हमारे पास कि वो जो है ना सोसाइटी ऑफ कोई और लॉ के तहत एड हो तो वो ऑलरेडी लॉ में एड हुआ हुआ है, तो उस पर मॉनिटर उस एक्ट के तहत हम कर सकते हैं। और इसी तरह से जॉइंट बिजनेस हो गए, इसमें इतना फ्रॉड वगैरह का रिस्क नहीं होता है, इसमें पब्लिक का पैसा भी लगा नहीं होता, तो इसलिए जो है ना इसकी इनको एग्जम्पशन दी गई है। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो है ना इनमें भी होता है फ्रॉड वगैरह का सीन हो सकता है, बट इनके जो बाय लॉज है ना वो इसको लिमिटेड करते हैं, उनके तहत तो रजिस्टर हुआ हुआ है तो उसमें हमारे पास जो है ना उसके तहत वो लॉ के जुमले में आ जाते हैं ये वाले प्रोफेशन या लॉयर वगैरह भी। तो इसलिए इनकी एग्जम्पशंस हमारे पास इसमें दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि किसको कंपनी एज अ कंपनी रजिस्टर करना लाजमी है और उनकी कौन सी एग्जम्पशंस हैं। अब इससे पहले ना ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो है ना लॉ रिक्वायर करता था कि 20 से ज़्यादा मेंबर हो तो इंडिया को रजिस्टर करना लाजमी है। अगर तो खुद पर्सन जो है ना अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए एज अ कंपनी, तो उसके लिए हमारे पास क्या करना लाजमी है या उसको कितने बंदे चाहिए ताकि वो एक कंपनी बना सके अपनी। तो उसलिए ये लॉ का सेक्शन आया सेक्शन 14। अब जो ऊपर वाला सेक्शन पढ़ा था हमने ये था सेक्शन 9 जो ऑब्लिगेशन बताता है कि कंपनी रजिस्टर करना किसके लिए लाजमी है। और सेक्शन 14 ये बताता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन जो है ना हमारे पास एक कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास स्टेटस के बेस पे इसने जो है ना मेंशन किया हुआ है। जैसे कि हमने टाइप्स में पढ़ा था स्टेटस के बेस पे 3 तरह की टाइप्स है कंपनी की, तो उसके बेस पे जो है ना इसने बताया है कि उनके बेस पे हमारे चाहे फिर हमारे पास अदर कंपनी क्यों ना हो ये, बट इनके लिए हमारे पास मिनिमम नंबर स्टेटस के बेस पे इसने बताया है। तो स्टेटस के बेस पे इसने बताया ये है कि सेक्शन 14 ये बोलता है कि फॉलोइंग कंपनी बननी तब कब बनेगी जब उनमें अगर तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड नहीं बट सिर्फ पब्लिक कंपनी है, तो उसमें कम से कम 3 लोग होने चाहिए। अगर 3 नहीं है तो वो कंपनी नहीं बना सकते, फिर उनको जाना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी के ऊपर। अगर 3 से कम है, 2 लोग हैं इनिशियली जो कंपनी बना रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कंपनी कैसे बनती है, बट वो जो है ना 2 बंदों ने सोचा कि मुझे कंपनी बनानी है तो वो पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते, वो प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना अगर तो 2 लोग भी नहीं है, एक पर्सन है सोल प्रोप्राइटर, तो एक पर्सन भी हमारे पास कंपनी बना सकता है, बट ये दोनों नहीं बना सकता प्राइवेट और पब्लिक, वो सिंगल मेंबर कंपनी बनाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी वर्डिंग को देख लेते हैं कि 3 or more person associated by any law purpose may by subscribing their name to memorandum of association। अब ये क्या चीज़ होती है memorandum of association?
मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होता है हमारे पास कि कंपनी के दो डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक डॉक्यूमेंट जो है ना कंपनी के क्या करता है, कंपनी कैसे चलेगी उसके रूल्स डिफाइन करता है। एक डॉक्यूमेंट जो है ना हमारे पास रजिस्ट्रार वगैरह या एक्सटर्नल पार्टीज को दिया जाता है जिसमें समरी होती है उस रूल्स की। उन रूल्स की समरी भी बोल सकते हैं या उसके अलावा चीजें होती हैं जो बाकी स्टेक होल्डर्स जो है ना उनके लिए लाजमी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, वो कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी में क्या क्या होगा वो सारा कुछ डील करता है। उसके तहत हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि हमारे पास जो कंपनी एक्सटर्नल पार्टीज को देगी ना एक समरी कंपनी के रिलेटेड, जिसमें हमारे पास कंपनी का नाम आएगा, कंपनी की हमारे पास लाइबिलिटी आएगी, कंपनी का स्टेटस आएगा कि लिमिटेड है अनलिमिटेड है क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें उसमें आएगी। ताकि ये इतना बड़ा नहीं होता, ये तकरीबन मैक्सिमम 2 या 3 पेज का होता है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन 30 35 50 पेजेस का भी होता है। उसमें सारे डिटेल में हमारे पास रूल्स डिफाइन होते हैं। तो उसको हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये बेसिक डेफिनेशन जो है ना मैंने बता दी। अच्छा, अब आगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 or more persons association for any law purpose lawful purpose may by subscribing the name to memorandum of association and comply with the requirement of this act form a company public company हम वो बना सकते हैं। ठीक है, अगर अपने जो नाम जो है सब्सक्राइब मेमोरेंडम पे लिख दें और जो है ना हमारे पास वो लॉ की सारी रिक्वायरमेंट जो पब्लिक कंपनी पे लगती है वो सारी फुलफिल करें। अब इसके रिलेटेड कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे साइनिंग होती है, सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में हमारे पास 2 या मोर पर्सन हो तो वो जो है ना कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो वो जो है ना हमारे पास सेम मैनर के तहत जो ऊपर था मेमोरेंडम पे साइन करेंगे और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से अप्लाई करेंगे तो प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए 1 पर्सन होना चाहिए। अब इसके लिए जो है ना एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। एडिशनल रिक्वायरमेंट इस सीन में बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो इन दोनों पे नहीं लगती, जैसे कि ट्रस्टी। एक ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि 1 पर्सन है तो मे भी अगर 1 पर्सन मर जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर इस लॉ ने ये वाला रिक्वायरमेंट डाली हुई है। तो 1 पर्सन alone may form a single member of company by complying with the requirement of private company registration plus an additional requirement specified। sole member must nominate a person, एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा, मेमोरेंडम में ये लिखेगा ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जो है ना ये हमारे पास जो नॉमिनेट किया है पर्सन, ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब ये 1 पर्सन मर जाएगा। जब मर जाएगा ना तो उस सीन में ये क्या करेगा, जितने भी कंपनी के शेयर्स है ना वो हमारे पास अगर तो लिमिट बाय शेयर्स है तो ये अब उसके लीगल हायर्स के पास क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद ट्रांसफर कर देगा इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत। ठीक है, जहाँ कोई भी अदर लॉ जो हमारे पास है तो उसके तहत उसको जो है ना ट्रांसफर कर देगा उसके शेयर्स। और कंपनी के अफेयर्स जो है ना मैनेज करेगा एज अ ट्रस्टी अंटिल द शेयर्स आर प्रॉपर्ली ट्रांसफर। जब ट्रांसफर नहीं होते तब तक वो खुद जो है ना हमारे पास कंपनी को देखेगा। तो हमारे पास सिंगल मेंबर कंपनी में 1 पर्सन को हमें नॉमिनेट करना पड़ेगा। अब ये नॉमिनेशन मेमोरेंडम में ही लिखनी पड़ेगी कि हम इसको नॉमिनेट कर देंगे, इनकेस अगर मैं मर जाऊं तो ये शेयर्स को ट्रांसफर कर सकें मेरे लीगल हायर्स के पास, और जो है ना तब तक जो है ना कंपनी को हमारे पास संभाल सकें। अब इस केस इसमें आ जाता है कि अगर तो लीगल हायर्स 2 हैं, एक नहीं है 2 हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो उस सीन में हमारे पास ये सिंगल मेंबर कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे पास किसमें, प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में हमारे पास कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास ये रिक्वायरमेंट उसने दी हुई है कि what happen if shares transfer to multiple heirs। if sole member state date the shares pass to say 3 children, the company automatically ceases to be a single member company and must comply with the section 42 conversion of provision। ये भी पढ़ेंगे हम section 47। ये कन्वर्जन की बेसिस पे कि एक कंपनी को, एक सिंगल मेंबर कंपनी को हमारे पास प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या प्राइवेट कंपनी को सिंगल मेंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कैसे किया जाएगा, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे किया जाएगा, ये सारी कन्वर्जन के केसेस आएंगे सेक्शन 47 में। ठीक है, तो हमारे सेक्शन 43 के तहत जो है ना ये अभी हम मल्टीपल लॉयर्स हो जाएंगे तो ये सेम एसएमई को जो है ना प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ये एक सेक्शन था हमारे पास सेक्शन नंबर 14। अब इसके रिलेटेड जो है ना एक और सेक्शन है सेक्शन 14 के रिलेटेड, एक है सेक्शन 15। अब उसको भी डील करते हैं। वो बेसिकली बताता है कि अगर तो ये सिंगल में हमारे पास ये मिनिमम नंबर्स कब हो जाते हैं, यानी कि
जैसे कि पब्लिक कंपनी तो इसमें दो हो जाते हैं, तो दो हो गए तो उसमें क्या होगा, लॉ उनको क्या बोलेगा। इसी तरह से इस प्राइवेट कंपनी को उसमें एक हो जाए तो उसके हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, लॉ उसमें क्या बोलेगी, यानी कि दो मेंबर की जगह पहले तो रजिस्टर तो दो पर्सन ने किया था, बट कुछ सीन हो गया जिसकी वजह से ना दूसरे पर्सन ने ना अपने शेयर सेल कर दिए, अब दूसरा पर्सन भी नहीं आ रहा, तो एक पर्सन रिमेनिंग रहता है। तो उस सीन में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट हो जाएगी, वो हमें यहाँ पर सेक्शन 15 में हमारे पास देखने को मिलेगी। अब सेक्शन 15 के पास चलते हैं, सेक्शन 15 कहाँ पर है, उसके रिलेटेड हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास सेक्शन 15 है, ठीक है। सेक्शन 15 में हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस, जब नंबर ऑफ मेंबर कंपनी के मेंबर्स जो है ना रिड्यूस हो जाए एंड कैरी आउट ऑफ बिजनेस ऑन मोर देन 6 मंथ, मतलब ये है कि नंबर भी कम हो गए और उन्होंने जो है ना बिना एससीसीपी को बताए उसको 6 महीने हो गए उन्होंने वो नंबर कंप्लीट नहीं किया, तो उस सीन में क्या हो जाएगा, एवरी पर्सन who is a member of a company during the time that it carry on business after those 6 months is recognized for the fact that recognize, इसका मतलब इस वर्ल्ड का मतलब ये है कि जो है ना उसको जानबूझ के उसको वो जानता था कि बिजनेस जो है ना कैरी आउट हो रहा है मिनिमम नंबर से कम पे, ठीक है। अब यहाँ पर उसने नंबर भी बता दिए, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था फ्यूअर देन 2 पर्सन, यानी कि प्राइवेट कंपनी में, और 3 पर्सन पब्लिक कंपनी में। इस केस में वी शैल बी सेवरली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट्स फॉर अ कंपनी contracted during the time and may be sued for therefore without joinder of suit and any other member, यानी join with किसी और जितने भी liabilities होंगी ना या उसके खिलाफ जो भी केसेस होंगे वो किसी और मेंबर के पास से हमने नहीं लगाने। जो उस टाइम पे मेंबर था ना 6 मंथ के बाद उसको पता चल गया कि 6 मंथ के बाद पता भी चला, फिर भी 6 मंथ तक बिजनेस कैरी किया, उसने जो भी जितने भी डेट्स लिए हुए हैं ना, तो उसके खिलाफ जो है ना वो पर्सनली लायबल होगा, यानी खुद ही पे करेगा कंपनी के वो डेट्स। और अगर किसी ने उसको केस किया तो अब मेंबर सारे के सारे ऊपर नहीं होगा, जो मेंबर उस टाइम पे थे तो उसी के ऊपर ही जो है ना वो केस हमारे पास फाइल होगा, किसी और को ज्वाइन नहीं करेगा उस केस में जो अदर मेंबर था, क्योंकि वो था ही नहीं मेंबर और ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, तो इसलिए जो है ना हमारे पास इसके ऊपर जो लायबिलिटी आएगी सारी इसकी आ जाएगी। इफ योर कंपनी, इसकी अब एग्जांपल मैंने जो है ना सिंपल वर्डिंग में ये बताई है कि इफ योर कंपनी मेंबरशिप falls below the legal minimum, जो ऊपर हमने पढ़ाया था, you have 6 months to fix it, तो हमारे पास जो है 6 मंथ होते हैं उनको फिक्स करने के लिए, bring a new member or convert a single member of company, if you don't, you keep trading with full knowledge of shortfall, you personally liable for that रन अप आफ्टर डेट पॉइंट, 6 मंथ के बाद जितने भी डेट होंगे ना वो सारे के सारे आप उसके ऊपर लायबल हो जाएंगे। अब इसको एग्जांपल में मैंने एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है। ये शफा फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। अब प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर मिनिमम होने चाहिए। इसके मेंबर थे मोहम्मद अहमद एंड मोहम्मद बिलाल। जनवरी के मंथ में जो है ना मोहम्मद अहमद जो है ना उसने सेल बेक की है, सेल बेक देयर शेयर्स, यानी कंपनी को वापस दे दिए सेल्स शेयर्स वापस उसको दे दिए, मतलब मेंबर से बाहर हो गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो है ना हमारे पास किसी और को शेयर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए जो है ना कंपनी को वापस ने शेयर बाय बैक कर दिए, बेक कर दिए, ठीक है। अब नाउ मिस्टर बिलाल जो है ना रिमेन रहा है, एक ही मेंबर रहा है जो मिनिमम नंबर से रिक्वायरमेंट से हमारे पास क्या होता है कि कंप्लाई नहीं करता। अब जनवरी में ये सीन हुआ है, जनवरी से लेकर जून तक इसके पास टाइम है कि हमारे पास क्या करे, इस प्राइवेट कंपनी को या तो एसएमई में कन्वर्ट करवाए या तो एक और मेंबर को लेके आए। यहाँ तक कोई लाइबिलिटी नहीं है 6 महीनों तक। बट जुलाई से ऑनवर्ड जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने भी कंपनी के जो भी होंगे ना कंटिन्यूसली सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट होगा या बैंक से लोन ले या कंपनी के नाम पे, तो उसके लिए मिस्टर अहमद खुद जो है ना लायबल हो जाएगा, ठीक है। अब रिजल्ट में इसलिए मैंने यहाँ पर रिजल्ट में मेंशन किया हुआ है कि for every date contracted from July onward, Mr. Bilal will become personally liable. A creditor can sue him directly in his personal capacity without bringing anyone else into the suit. क्योंकि नॉर्मली जो है ना हमने कंपनी जो है ना कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो वो अपने केसेस वगैरह उसके खिलाफ ही कर सकते हैं, बट इन केस अगर मेंबर से कम हो जाता है तो वो कंपनी खराब, मतलब कंपनी नहीं रहती, तो जिसकी वजह से ना वो जो मेंबर होता है ना
वही हमारे पास क्या हो जाएगा, पर्सनली लायबल हो जाता है। तो ये सेक्शन 15 था, जिसमें हमारे पास उसकी एक लाइबिलिटी बता दी है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से एक कंपनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा उनके ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर। अब ये बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। पहले हमने पढ़ा कि कंपनी रजिस्टर करना किसके लिए लाजमी है, हमारे पास सेक्शन 9 में जो बोलता है ये। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी एग्जम्पशन भी थी, वो उसको भी मैंने रीड करने की कोशिश की, उसको भी बताने की कोशिश की। उसके बाद जो है ना हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, यानी कौन से पर्सन है, कितने मेंबर्स होने चाहिए जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स रख या मिनिमम पर्सन बन के कंपनी बना। वो तो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं अगर इतने मेंबर्स हों, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना इसकी लायबिलिटी भी हमने डिस्कस की। अब इसके बाद जो है ना एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइम तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं इसमें भी। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है, तो सारा का सारा एक स्टोरी में जो है ना बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना, ठीक है।